نماز کے لیے آتے ہیں. اب وہ ذہن میں آ گیا اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بچے نماز کے لیے آتے ہیں تو بچے پیچھے مستیاں کرتے ہیں. ہم میں سے آپ میں سے بہت لوگ ڈانٹ بھی دیتے ہیں, بہت لوگ الٹا سیدھا بھی بول دیتے ہیں, بہت لوگ کچھ اور بھی بول دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو نہ تو ڈانٹنا چاہیے, نہ برا بھلا بولنا چاہیے. اور بہت سے لوگ تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. کس سے پوچھ کر آپ نے کس کے بچے پہ ہاتھ اٹھایا؟ ہمارا بچہ نماز کے لیے, آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے بچے پہ ہاتھ اٹھا دیا؟ کون ہو تم جو ہاتھ اٹھاتے ہو؟ کس نے اجازت دی کہ آپ بچے کے اوپر آپ ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اگر آپ کے دل میں محبت ہے صرف اور صرف بچوں کو سمجھا سکتے ہو, صرف اور صرف سمجھا سکتے ہو, لیکن ڈانٹنے کا ٹپکنے کا ایک دم آپ کو حق نہیں ہے. ترکی کی ایک مسجد ہے الصوفیہ, نام سنا ہوا آپ نے؟ الصوفیہ ایک مسجد ہے, بہت بڑی مسجد ترکی کے اندر, ترکستان کے اندر. اس مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے, اس کی عبارت ہے, عربی کی عبارت ہے, وہ اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ ہے کہ جب تک, بڑے غور سے سنیں گے, جب تک تمہارے بچوں کی آوازیں, تمہاری پچھلی صفوں سے بچوں کی آوازیں آتی رہیں گی تو سمجھ لو تمہارا اسلام زندہ ہے. اور جس دن تمہارے بچوں کے پیچھے سے آواز آنا بند ہو گئی تو سمجھ لو اسی دن سے اپنی نسلوں کی فکر کرنا شروع کر دینا. اپنے نسلوں کی فکر شروع کر دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نسل نیست و نابود کر دی جائے, کہیں تمہارے اسلام اور تمہارے اوپر حملہ کر دیا جائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, صدق اللہ العظیم. درود پاک پیش کریں, پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند علامہ شاہ عبد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان یہ عرض کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا لیکن میرے سرکار نے جانے نہ دیا. عزیزان گرامی, قرآن مقدس کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, حکم مانو اللہ کا, حکم مانو اللہ کا, اور حکم مانو رسول کا, اور ان کا بھی حکم مانو جنہیں حکومت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اے ایمان والو, حکم مانو اللہ کا, حکم مانو رسول کا, اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں. عزیزان گرامی وقار, آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے درود پاک پیش کریں, اس کے بعد پھر کچھ چیزیں آپ سے عرض کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان والشفاء ونور الابصار وضیائها. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل سے میرا یہ چوتھا بیان ہے, اس وجہ سے آواز بیٹھ گئی ہے. کل جامع مسجد میں تھا, اس کے بعد پھر اسلام پورا میں تھا, پھر فجر میں بھی بول دی. اب یہ چوتھا بیان ہے تو آواز بہت خراب ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تفسیر احمدیہ کے اندر آتا ہے, آج ہمارا جو موضوع ہے اسلام میں ادب کا کیا مقام ہوتا ہے, اسلام میں ادب کا مقام کیا ہوتا ہے, اس تعلق سے اس ٹاپک میں ہم گفتگو کریں گے. تفسیر احمدیہ کے اندر ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جنگ کے لیے بھیجا تھا. ایک جنگ کے لیے حضور نے صحابہ کو بھیجا, جس کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو بنایا تھا. جب حضرت خالد بن ولید کو بنایا اور جب جس جگہ انہیں جنگ کے لیے جانا تھا, جب وہاں پہنچے تو معلوم یہ ہوا ان کا
نے اپنا پورا محلہ خالی کر دیا، جاتے ہی پورا محلہ خالی کر دیا، لیکن ایک شخص اسی بستی کے اندر رہ گیا اور وہ چھپ گیا۔ جب رات ہوتی ہے تو ایک صحابی رسول جن کا نام تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، وہ رات میں ان کے خیمے میں آ گیا اور امان حاصل کر لی، یعنی مجھے امان ہے، مجھے معاف کر دیے جائے اور آپ جیسا بولو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ تو حضرت عمار نے کہا ایسی بات ہے تو چلو ٹھیک ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت خالد بن ولید جسے رسول اللہ نے اس لشکر کا سپہ سالار یعنی گورنر مقرر کیا تھا، وہ ان کے پاس بھی آ گیا تو امان لے لی۔ امان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے کوئی مار نہیں سکتا ہے، یعنی وزیر نے لکھ کر دے دیا، گورنر نے لکھ کر دیا، سپہ سالار نے لکھ کر دے دیا کہ ہم نے ان کو امان دے دی ہے، اب اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی اب مار نہیں سکتا ہے، اس کی کوئی جان نہیں لے سکتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے بھی امان دے دی، لیکن اس کا جو مال تھا اس مال کو لے کر مال غنیمت میں شامل کر لیا۔ تو حضرت عمار نے یہ کہا کہ اے خالد بن ولید، تم نے اس شخص کا مال لے کیوں لیا؟ کیوں مال لیا تم نے اس کا؟ جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس کو امان دے دی تھی، اس کا مال کی بھی امان دے دی تھی، اس کی جان کی بھی میں نے امان دے دی تھی، پھر خالد بن ولید تم نے اس کا مال کیوں لے لیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اے عمار، تم سپہ سالار نہیں ہو جو ہمیں سمجھا رہے ہو، تم سپہ سالار نہیں ہو۔ اسلام و پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سپہ سالار بنایا ہے، اور جب مجھے بنایا ہے تو میں جو کروں گا وہی تمہیں ماننا ہوگا، تم جو کرو گے وہ میں نہیں مانوں گا، میں جو بولوں گا وہ تمہیں ماننا ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جب جنگ فتح ہو گئی واپس آ گئے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عمار نے پورا معاملہ جو ہوا تھا پورا بیان کر دیا گیا، رسول اللہ جب میں نے اس شخص کو امان دے دی تھی پھر خالد نے اس کو امان کیوں نہیں دی تھی، خالد نے اس کا مال کیوں لے لیا تھا؟ حضرت خالد نے بھی پورا معاملہ پیش کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار، تمہیں معاف کیا جاتا ہے، عمار تجھے معاف کیا جاتا ہے، لیکن اے عمار تمہیں اس شرط پر معاف کیا جاتا ہے، اس شرط پر کہ آج تو تم نے بغیر گورنر کے بغیر سپہ سالار کے کوئی فیصلہ لے لیا، کبھی بھی کسی جنگ میں جاؤ تو تمہارا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کا فیصلہ مانا جائے گا جو تم میں سب سے بڑا گورنر کہلائے گا۔ اسلام کا ادب دیکھیں، یہاں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادب بتایا کہ جو کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی عہدے پر ہوتا ہے یا کوئی خلیفہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہند کے وزیر اعلیٰ، آدمی ان کی عزت اس لیے کرتا بھائی ہندوستان کے وزیر اعلیٰ ہے، پردھان منتری ہے، مکھ منتری ہے، پی ایم سی ایم جو بھی ہے، آدمی عزت اس لیے کرتا کہ بھائی یہ عہدے پر ہندوستان کی نے حکومت اور ہمارے ہند نے، ہماری عوام نے، ہمارے لوگوں نے ان کو ایک بڑا عہدہ دے دیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کو ووٹ کیا ہے، بھائی ان کو بڑا عہدہ دے دیا، اس لیے لوگ مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کسی عہدے پر ہو تو اس کا ادب بجا لانا یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمارا کوئی بھی امام ہو، اس مسجد کا ہو، اس کا ہو، یا دنیا کی کسی بھی مسجد کا معاملہ ہو، تو ہم لوگ اس کا ادب کیوں کرتے ہیں، اس کی باتیں کیوں مانتے ہیں؟ اے بھائی یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا رہبر ہے، یہ ہمارا رہنما ہے، یہ ہمارا پیشوا ہے، یہ نہ مانتے، اس لیے لوگ عزت کرتے ہیں۔ ورنہ آپ بھی جانتے ہو کہ وہ امام بھی ایک انسان ہے، ہم بھی ایک انسان ہے، لیکن ادب اس لیے کرتے ہو کہ ان کے دل میں قرآن و حدیث ہے، یہ قرآن و حدیث کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، جیسا جیسا یہ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔
क्योंकि पूरी कौम, पूरी समाज अपने लीडर और रहबर की बुनियाद पर चलती है। अगर किसी कौम का अगर लीडर ना हो, अगर किसी कौम का रहबर ना हो, अगर गवर्नर ना हो, तो वो कौम कभी भी फतह याब नहीं हो सकती, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए शिकस्त खाती रहेगी। अब क्यों? उसकी वजह यह कि जब गवर्नर होगा, कोई पेशवा होगा, तो वो बात एकदम यकीनी तौर पर बोलेगा, पूरी अवाम मानेगी। लेकिन अगर कोई गवर्नर नहीं हुआ, कोई सिपह सालार नहीं हुआ, मेरा दिमाग कुछ कहेगा, मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहोगे, वो कुछ कहेगा, तो तीनों चारों जितने लोग हैं सबकी अकल अलग अलग काम करेगी। जब अलग अलग काम की, बस ये समझ लो कि पस्त हो गए। जाने के रहे वफार। तो उसके बाद हजरत अम्मार ने जब रसूलुल्लाह ने फैसला भी कर दिया, अम्मार तुम्हें माफ कर दिया गया, लेकिन आइंदा ख्याल रखना कि कभी भी ऐसी कोई अमान मत देना अपने सिपह सालार के बगैर। तो उसने इतना सुन लिया हजरत अम्मार ने, उसके बावजूद हजरत खालिद को कुछ बुरा भला कह दिया। हजरत खालिद को कुछ बुरा भला कह दिया। हजरत खालिद ने सुन लिया। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने सुना तो क्या कहा कि अगर मुझे इस महफिल का अदब नहीं होता जिस महफिल में रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए, अगर इस महफिल का मैं अदब नहीं करता तो ये अम्मार आप तुम्हारा जिस्म तो होता, लेकिन तुम्हारे जिस्म के ऊपर तुम्हारा सर नहीं होता। लेकिन वजह सिर्फ इतनी है, अदब इसलिए कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह की महफिल है। और कुरान मुक़द्दस के अंदर हदीस पाक के अंदर कई जगह कुरान मुक़द्दस के अंदर है कि ऐ लोगों, रसूल की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो। रसूल की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो, अपनी आवाज को पस्त रखो, नीचे रखो। इसी तरीके से जब रसूल की बारगाह पहुंचो तो अदब का ख्याल लाओ, बेअदब मत बनो। अदब इसी तरीके से जो हमारे उलमा होते हैं, उलमा जो हमारे अइम्मा इमाम हजरत होते हैं, ये होते हैं नाइबे रसूल। क्या होते हैं? नाइबे रसूल। जिस तरीके से सहाबा ने मुस्तफा करीम की बारगाह में कभी ऊंची बात नहीं की थी, और जिसने ऊंची बात की तो रब ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमा दिया। इसी तरीके से हमारी आवाम को चाहिए कि जब हमारा कोई भी इमाम हो, किसी भी जगह का इमाम हो, जब अपने इमाम के सामने पहुंचे तो आवाज को अपनी इमाम से बुलंद हरगिज न की जाए। ऐसा ना हो कि तुमने जिंदगी भर की नेकियां की हैं, तुम्हारी नेकियां गारत कर दी जाए, हटा दी जाए, जिंदगी भर के तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने उलमा के पास पहुंचा करो, जब अपने रहबर और रहनुमा के पास पहुंचा करो, तो पहले अदब का ख्याल बजा लाया करो, पहले अदब कर लिया करो। और कोई ऐसा जुमला मत कहो कि तुम्हारे इमाम को तुम्हारे पेशवा को कोई जुमला सुन उसके दिल को तकलीफ पहुंच जाए। दूसरी बात यह कि आज मस्जिदों के अंदर देखा गया कि इमाम साहब कुछ बोलते हैं, कुछ मुक्तदी उठ जाते हैं, अरे इमाम साहब ऐसा हो गया, अरे इमाम साहब ऐसा हो गया। या कुछ इमाम बैठा हुआ है, आपस में दो लोगों में झगड़ा हो गया, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, आपस में कुछ मैटर बन गया, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, या कुछ आवाज बुलंद कर दिया, कोई नमाज हो रही है, इमाम हमारा मौजूद है, हमारा इमाम मौजूद, और इमाम की मौजूदगी में एक आम इंसान और वो आवाज बुलंद कर रहा है। प्यारे, ये हरगिज ये सबसे बड़े अदब के खिलाफ है। ये अदब वाले लोगों का मामला नहीं है। इमाम के सामने इमाम मौजूद है, मुसल्ले पर इमाम मस्जिद में मौजूद है, उसके बाद अगर कोई आवाज को बुलंद कर रहा है, आवाज निकाल रहा है, तो ये समझ लो ये अदब वालों में नहीं है, ये बेअदब वाले लोगों में शामिल है। तो अदब के लोग कभी भी अपने इमाम के सामने अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो फौरन कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा नाज़िल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालों, हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल का, और उनका भी हुक्म मानो जो तुम में हुकूमत करने वाले हैं। यानी हजरत अम्मार ने जो कहा था, अम्मार ने क्या कहा था, हजरत खालिद को बोल दिया था, तो कुरान की आयत नाज़िल हो गई कि हरगिज़ नहीं, ये हुकूमत कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि सिपह सालार बना गया, तुम उनकी बात में मान लो। बहरहाल, लेकिन खालिद बिन वलीद का जोश और उनका जज्बा देखे कि खालिद बिन वलीद ने खुद ही हजरत अम्मार बिन यासिर से माफी मांग ली। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो ये है इस्लाम में अदब का मामला। अदब बहुत अहम चीज है, हमेशा कभी भी बेअदब नहीं रहना चाहिए, चाहे हमारे वो घर के लोग हो, हमारे माँ बाप हो, हमारे भाई बहन हो, सबका अदब करें। अगर
हमारे यहाँ बच्चे नमाज के लिए आते हैं, अब वो जहन में आ गया इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे नमाज के लिए आते हैं तो बच्चे पीछे मस्तियां करते हैं। हम में से आप में से बहुत लोग डांट भी देते हैं, बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, बहुत लोग कुछ और भी बोल देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों को ना तो डांटना चाहिए, ना बुरा भला बोलना चाहिए, और बहुत से लोग तो हाथ भी उठा देते हैं। हाथ उठाने की इजाजत हरगिज़ नहीं है। किससे पूछ कर आपने किसके बच्चे पे हाथ उठाया? हमारा बच्चा नमाज के लिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने बच्चे पे हाथ उठा दिया? कौन हो तुम जो हाथ उठाते हो? किसने इजाजत दी कि आप बच्चे के ऊपर आप हाथ उठाते हो? अगर आपके दिल में मोहब्बत है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को समझा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ समझा सकते हो, लेकिन डांटने का, टपकने का एकदम आपको हक नहीं है। तुर्की की एक मस्जिद है अस-सोफिया, नाम सुना होगा आपने? अस-सोफिया एक मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद तुर्की के अंदर, तुर्किस्तान के अंदर। उस मस्जिद के ऊपर लिखा हुआ है, उसकी इबारत है, अरबी की इबारत है, वो उसका उर्दू तर्जमा मैं आपको कर रहा हूं। उसका तर्जमा है कि जब तक, बड़े गौर से सुनेंगे, जब तक तुम्हारे बच्चों की आवाजें, तुम्हारी पिछली सफों से बच्चों की आवाजें आती रहेंगी, तो समझ लो तुम्हारा इस्लाम जिंदा है। और जिस दिन तुम्हारे बच्चों के पीछे से आवाज आना बंद हो गई, तो समझ लो उसी दिन से अपनी नस्लों की फिक्र करना शुरू कर देना, अपने नस्लों की फिक्र शुरू कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नस्ल नीस्त नाबूद कर दी जाए, कहीं तुम्हारे इस्लाम और तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया जाए। तो इतना ख्याल रखना। और ये सुभाषनगर का मैटर नहीं है, आप लोगों में कई जगह के लोग होंगे, हर जगह कहीं के भी बच्चे देख लो, कहीं के भी, ये नहीं कि हमारे सुभाषनगर के अंदर वही सिखाया जाता हो कि कान में बोल दिया जाता हो कि भाई मस्ती तुम्हें करना है, ऐसा नहीं है। हर जगह बच्चे मस्ती करते हैं। बच्चों का मतलब क्या, कोई बता दिया हमें? बच्चों का मतलब ही जब बोल दिया ना भाई बच्चा है, छोटा है, तो जाहिर सी बात है मस्ती करेगा। वो कहां सीखेगा, कहां जानता है वो? अगर वो हकीकत जानता ही तो क्या बच्चा कहते उसको? अगर उसको इतनी अकल होती, इतनी समझ होती, जितनी बुद्धि आपको, आप आगे मस्ती नहीं करते, तो क्या वो पीछे मस्ती करता? नहीं करता ना। अरे भाई आज मस्ती कर रहा है, कर वो नमाजी बनेगा। एक कम से कम अगर आप उसको डांटोगे, यहाँ तक कि एक बच्चे को तो इतना डांट दिया कि वो नमाज के लिए नहीं आता है, एक बच्चा नमाज के लिए नहीं आ रहा, उसका गुनहगार कौन होगा? इसके जवाब दे सकते हैं? हो सकता है कि अल्लाह उसको कल हिदायत अता फरमाता, वो एक नमाजी भी कहलाता, इस्लाम का एक मुजाहिद भी कहलाता, मैदान जंग का एक गाजी भी कहलाता। हो सकता है अल्लाह उसके दिल में इतनी रहम, इतना करम फरमा देता, उसको पढ़ने का शौक हो जाता, वो एक हाफिज भी बन सकता था, आलिम भी बन सकता था, नहीं तो कम से कम अल्लाह का एक नेक बंदा तो बन सकता था। लेकिन आपकी वजह से आज वो एक बच्चा इस मस्जिद के अंदर नहीं आता है। इसलिए मैं आप सब बड़े अदब के दायरे में और बड़े अदब और मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि बच्चे जो मस्ती करते हैं आप सिर्फ समझा सकते हैं, डांटना हरगिज आपको इजाजत नहीं हो। किसी बच्चे पर हाथ तो हरगिज आप ना उठाएं, ये मेरी तरफ से गुजारिश है। ये हमारा मामला नहीं था, बस सिर्फ आपको बता दिया हूं। इसके अलावा आपको बहुत खास चीज बताऊं, अब रसूलुल्लाह का अदब, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, बहुत खास चीजें बताता हूं कि अदब देखो रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस्लाम में अदब का मकाम कि सिद्दीक अकबर ने इमामत फरमाई, यानी मुसल्ले पर चढ़ गए, हुजूरी के हुक्म से चढ़े, लेकिन बाद में हुजूर आ गए, नमाज के दौरान हमारे और आपके आका आ गए। जब आ गए तो सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे, उन्हें महसूस हो गया कि हमारे आका आ गए, हमारे आका आ गए, हमारे नबी आ गए, तो सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, सिद्दीक कदम वही रखो, सिद्दीक कदम वही रखो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई नमाज पढ़ाएगा, कोई और नहीं बल्कि वो सिद्दीक ही वो पढ़ाएगा। बहरहाल फिर वो नमाज हुई, रसूलुल्लाह ने फरमाया, सिद्दीक किस चीज ने तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? सिद्दीक अकबर का जुमला सुनो, अल्लाह कसम दिल मचल उठेगा। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह आप इमामुल अंबिया हैं, नबियों के इमाम, आप इमामों के इमाम। और सिद्दीक जानता है कि जो इमामुल अंबिया हो, उम्मत तो क्या जिसने नबियों की इमामत की हो और वो पीछे हो, सिद्दीक आगा हो। या रसूलल्लाह, सिद्दीक के इश्क ने गवारा नहीं किया कि इमामुल अंबिया पीछे हो, सिद्दीक आगा हो, इसलिए रसूलल्लाह मैं पीछे चलाया। ये मकाम रसूल, अरे वो कोई और नबी तो नहीं है, वो हमारे नबी है भाई, कोई और नबी नहीं है। अरे ये समझ लीजिए कि पूरा कुरान हमारे और आपके आका की तारीफ है, पूरा कुरान
की तारीफ। अरे अंदाजा करो इस नबी का मकामी सिर्फ इतना समझ लो, इतना एक जुमले से अगर यहां से लेकर वहां तक तमाम लोग मेरी तारीफ करो, हर एक इंसान के मुंह पर माइक लगा दिया, भाई मौलाना के बारे में क्या कहते हो, मौलाना के बारे में क्या कहते हो, मौलाना के बारे में कहते हो, लोग गए अरे मौलाना बहुत अच्छी, अरे मौलाना बहुत ही, अरे मौलाना बहुत नेक, अरे मौलाना। तो आप समझोगे भाई हकीकत में यार बहुत नेक है, हकीकत में एक बहुत नेक छोटी सी दुनिया की मिसाल। तो अंदाजा करो उस नबी के बारे में आप क्या कहेंगे कि अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर कमो बेश 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अंबिया को भेजा और हर एक नबी ने हमारे और आपके आका की तारीफ करते हुए दुनिया में तशरीफ लाया। और हर एक नबी ने अपने उम्मतियों को यही पैगाम दिया, एक ज़माना आएगा तो उसमें अल्लाह के आखिरी नबी होंगे जो तमाम नबियों के सरदार कहलाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो ये है हमारे नबी के इश्क का मामला। शायर कहता है ऐ इश्क तेरे सदके जन्ने से छठे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और एक चीज तौरात की रिवायत पेश कर रहा हूं, इससे बड़े गौर से सुनेंगे। तौरात की हमारे नबी का मकाम देखें, 200 बरस का एक इंसान, बनी इसराइल का मामला, 200 साल एक शख्स ने अल्लाह की नाफरमानी की। 200 साल के साल 200 साल अपने रब की नाफरमानी। जब इसका इंतकाल होता है, बनी इसराइल के लोगों ने इसको उठाया और शहर के बाहर ले गए, जहां कचरा पड़ा रहता ना, कई जगह होती है ना शहर के अंदर, भाई कचरा डाल देते, अपने नहर के अंदर लोग कचरा डाल देते, इसी तरीके से वहां फेंक गया इसको। अल्लाह ने हजरत मूसा को वही भेजी कि ऐ मूसा जाओ और उसे उठाओ, उसको गुस्ल दो और उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ। उसे उठाओ, गुस्ल भी दो और जनाजा भी पढ़ाओ। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह इसने तेरी 200 साल तक नाफरमानी की है। बनी इसराइल के लोगों से मैंने सुना है कि वो शख्स 200 साल तक इसने तेरी नाफरमानी की। रब ने फरमाया मूसा हमें मालूम है कि इसने हमारी 200 साल तक इबादत से दूर रहा, हमारी नाफरमानी की, लेकिन पैगंबर जो किताब हमने तुम्हें दी है जिसका नाम है तौरात, उसी तौरात को ये शख्स रात में रोजाना खोलता है, तौरात को रात में रोजाना खोलता है और उसमें एक नाम मिलता है, वो कोई और नाम नहीं बल्कि वो हमारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मिलता है। और जब हमारे नबी का नाम मिलता है, हमारे महबूब का नाम मिलता है, हमारे सबसे अजीज नबी का नाम मिलता है, तो एक शख्स उस नाम को किताब उठाता है, पहले तो चूमता है और फिर आंखों से लगाता है, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ता है। ऐ पैगंबर इस शक्ति, ये अदा, ये तरीका, ये अमल हमारी बारगाह में इतना मकबूल है कि हमने इसको माफ तो कर ही दिया, जन्नत में तो जाएगा, लेकिन जन्नत में इसके साथ 70 हूरे भी हमने इसको अता कर दी। अज़ीज़ान गिरामी, ये है इस्लाम में अदब का मकाम। क्या समझे कि बताओ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, उनके नाम को सिर्फ चूमा, नाम को चूमा, किताब में ही लिखा हुआ था, किताब को चूमा और चूमने के बाद आंखों से लगा लिया और दुरूद पाक पढ़ दिया। और इसका हवाला भी सुन ले, हुलियतुल औलिया अबू नईम सीरत हुलबिया जिल्द 1 सफा नंबर 80 के अंदर। इसके अलावा मारिजुन नबुव्वा सफा नंबर 82 के अंदर ये रिवायत मौजूद। इसके अलावा एक खास चीज और देख लें, 1 मिनट की चीज है, वो आपको बता देता हूं कि अल्लाह वालों का अदब का मकाम क्या होता है और इस्लाम ने अदब का क्या मामला पेश किया है। हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाजार से गुजरे, जैसे ही बाजार से गुजरे तमाम बाजार के लोग इकट्ठे, पूरा बाजार हाथ बांध कर खड़ा हो गया। क्यों? अरे भाई ज़करिया मुल्तानी आ रहे, अल्लाह के वली आ रहे, अल्लाह के नेक बंदे, तमाम लोग हाथ बांध कर खड़े। इतनी देर क्या गुजरी कि एक तवाइफा जो कोटे पर बैठती थी, उसने जब सुना कि हजरत ज़करिया मुल्तानी आ रहे तो उसने लोगों को वहीं छोड़ दिया
मुल्तानी का दीदार करने लगी। दीदार करने के बाद हाथ बांध के खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद हजरत ज़करिया जब चले जाते हैं तो वही तवाइफा जो कोटे पर बैठती थी, जो अपने रूम में आती है, तो नौजवानों ने कहा कहां गई थी? कहा तुम्हें मालूम नहीं कि आप तो ज़करिया मुल्तानी का गुजर बाजार से हुआ था, मैं तो उनकी ज़ियारत और उनके अदब के लिए गई थी। कहा वो अदब करना था तो छत से कर ली होती, छत से देख लेती तो और अच्छा दीदार हो जाता, वहां तो लोग कहे जैसे इन्हें दीदार नहीं हो पाया। बोले कि मैं बेअदब नहीं हूं, मैं तवाइफा जरूर हूं, बेअदब नहीं हूं। मैंने देख लिया कि अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली नीचे हो और मैं ऊपर हूं, इसलिए मैं नीचे चली आई कि इनका कम से कम अदब बजाता हूं। जब उस तवाइफा का इंतकाल हुआ, दुनिया से गई, तो किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रही थी, जन्नत में टहल रही थी। पूछा तवाइफा, दुनिया के अंदर तूने तो बहुत बुरा किए हैं, नाजायज काम करती थी, हराम काम करती थी, फिर तू जन्नत में कैसे? तो बोले जिसके ऊपर रब का करम हो वो जन्नत में क्या कहीं भी जा सकता है। बोले मेरी सिर्फ एक नेकी है जिंदगी की, और वो है कि एक दिन हजरत ज़करिया मुल्तानी जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके दीदार के लिए, उनके अदब के लिए मैं छत से नीचे उतर आई और मैंने दोनों हाथ बांध के उनको देखना शुरू कर दिया। यही मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह मकबूल हो गई। वरना मेरे अमाल के बारे में तुम सुनोगे, मेरे अमाल के बारे में, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैंने जो गुनाह किए इनका बदला तो जहन्नम ही था। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की जब नजर पड़ी है तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बोल पड़े मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता जहन्नम में, लेकिन मेरी सरकार ने जाने ना दिया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो आपसे भी गुजारिश है किसी भी जगह रहो, अपने इमामों की, अपने रहबरों की, अपने लीडरों की अदब भी करें और अदब करें उनका, और दूसरी बात उनकी आवाज पर लब्बैक भी कहें। किसी भी जगह के अगर इमाम है, इमाम का मतलब ही सामने होता है, उसका अदब करेंगे और बेअदबी नहीं करेंगे। खास तौर से अगर मस्जिद के अंदर इमाम है तो कितनी भी बड़ी बात हो जाए इमाम के सामने हरगिज नहीं बोलेंगे। इमाम मौजूद है तो हरगिज आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ये अदब के खिलाफ है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हमारे नायबीन है, और नायबीन रसूलुल्लाह का जो होता है, फरमाए किराम होते हैं, इमाम होते हैं, उनके सामने बुलंद आवाज से गुफ्तगू हमें नहीं करनी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब ताला हम तमाम को एक दूसरे का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को